Now we are starting with the next topic, last topic of this chapter, mathematical methods. That is about derivative and integration. Now to start with derivative and integration, see y is always a function of x. Okay, यानी I can say that function of x is something in terms of y, something in terms of x. Example के लिए function of x can be x square plus 2x. That's a polynomial. So function of x can be something in terms of x. It can be logarithm, trigonometric, ratios of polynomials. Okay? So something will be in terms of x. That is called as fx, and that fx is nothing but y. Okay? Example के लिए speed, that is v, is equal to distance upon time. So notice करो, speed is a function of x, distance. तो यहाँ पे वेरिएबल x है. It can be a variable time also. So speed can be a function of time. Speed can be a function of distance. That depends on our question कि तुम्हारा function कौन है. Is the function x, मतलब the speed, अगर तुम्हारा speed function है, तो वो speed function किस पे depend है? So that dependent term is, this is a dependent term. The speed is a dependent term. बट वो डिपेंड किस पे, x पे डिपेंड है, तो x becomes an independent term. तो x की वैल्यू चेंज होगी. x is my variable, time is not variable then. ठीक है, then speed can be a variable of time. Okay, तो speed time पे भी based हो सकता है. So here speed can be a variable of distance or can be a variable of time. Example के लिए if I draw a curve of any speed distance, speed time या speed distance का curve form करेंगे. समझो मैंने यहाँ पे टाइम लिया या मैंने यहाँ पे स्पीड लिया, ठीक है, या मैंने यहाँ पे x लिया, मैंने टाइम को x लिया, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस x लिखा है बट मैंने टाइम को x ले लिया. अज्यूम मैंने टाइम को x लिया, ओके, और अपना स्पीड यानी फंक्शन ऑफ x है. आई कैन राइट इट fx, आई कैन राइट इट y आल्सो. तो हम लोग x एक्सिस पे, x एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर इनपुट डालते हैं, y एक्सिस में हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर आउटपुट डालते हैं. So this is your independent variable, this is your dependent variable. Okay, now if I take any point over here, this is a point जिसका टाइम समझो x0 है, तभी का स्पीड समझो y0 है. That y0 can also be written, see y यानी fx होता है, that y0 can also be written as f of x0. Okay, now if I change that time by a small value delta x, okay, delta x by a small value, this is called as an increment. This increase in value of x is called as an increment, delta x. अगर मैंने इस x को delta x से increase कर दिया, तो वैसे ही ये y का वैल्यू भी increase हो जाएगा delta y से. If this is an increase delta x, then there is an increase delta y if I draw it on the y axis. Okay. Now this is my first point A, this is my second point B. If I draw a line over here, I'll get the slope of that line. That slope of that line will become delta y by delta x. Okay. Slope of that line will become delta y upon delta x. Delta y upon delta x. If you remember, हमने 10th में slope किया है, right? Everyone? Yes, sir. Okay. Yes, What was sir. slope formula? y2 minus y1. y2 minus y1 upon x2 minus x1. ठीक है? Let's see why this is delta y upon delta x. ये y0 है. ये delta y से increase हो गया. तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? ये increase है. Delta y is an increase. तो ये फाइनल वैल्यू क्या रहेगा? y plus delta y. वैसे ये x0 है, ये delta x से increase हो गया, तो ये फाइनल वैल्यू क्या रहेगा? x plus delta x. So what is the formula? y2 minus y1. So tell me, y2 minus y1 करने के बाद क्या आंसर आया? y2 minus y1 करने के बाद क्या आंसर आ रहा है? Please, what is the answer I get? ये y0 plus delta y है और ये y0 है. y0 plus delta y minus y0 किया तो क्या रिजल्ट आता है? delta y. जैसे x0 plus delta x minus x0 किया तो क्या रिजल्ट आता है? delta x.
So what is your slope? Delta y by delta x. Okay. Now if I try to decrease the value of this increment, that means I am bringing this b near a. I am trying to decrease this value of delta x. I am bringing this b near a. Okay. So as I bring it near a, delta x तो decrease हो ही रहा है, delta y is also getting decreased till the point where b coincides. B coincides to a. That b coincides to a becomes the limit where delta x is tending to 0. Why? देखो अगर b a की तरफ आ रहा है तो delta x का वैल्यू कम होते जा रहा है ना. अगर delta x का वैल्यू कम होते जा रहा है at a certain point जहां पे b a को coincide करेगा, वहां पे delta x कितना हो जाएगा? ये delta x is the change, this is the increase, this is called as delta x. This is not delta x, this is x0 plus delta x. This is an increment delta x. अगर मेरा b point a की तरफ आ रहा है तो delta x is what? Delta x is tending to, or delta x is becoming near to 0. Okay. If it is becoming near to 0, that is limit, there is a limit till which I can make this delta x tend to 0. It is not exactly becoming 0, it is becoming near to 0. So that limit where the delta x is tending to 0, delta y by delta x, this limit where delta x tends to 0, delta y by delta x, this is called as limit. This is one of your chapters in mathematics, limit. Okay. So limit delta x tends to 0, delta y by delta x is called derivative with respect to y. That is what we are learning, the formulas for derivative. Okay, अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है डेरिवेटिव्स का. ओके, यू डोंट हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग ऑफ दिस. ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, ये समझो, मजे लो, छोड़ दो. ठीक है, एंजॉय दैट. वी डोंट नीड टू डू लर्न ऑल दिस थिंग्स. ये जो मैंने बताया, सर ये इतना थियरी कैसे लर्न करेंगे? यू डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग ऑफ दिस थियरी. तुमको सिर्फ इतना याद रखना कि डेरिवेटिव होता क्या है. ठीक है. सो हियर this is one way to explain it. Once again, एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में वापस बता देता हूँ so that there is more clarity about it. So this is x, this is function of x which can also be written as y. There is a curve, y is a function of x, y is a function of x. हर function का एक curve होता है. That curve can be a straight line, that curve can be पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कर्व हो सकता है. ये मैंने एक एग्जांपल लिया कर्व का. अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ए लिया है x0 and there is a small increment b, that small increment is by delta x0, that increment is by delta x0, then increment and increase. Okay, so what is this final value? X. What is the final value of b becomes? ये a, ये b है. Yes, बताओ क्या रहेगा? x plus delta x. Very good. वैसे यहाँ पे increment is delta y0. So what is the final value over here? y0 plus delta y0. If I draw a straight line, okay, the slope of that tangent, sorry, slope of that AB, not tangent. What is the slope of AB becomes delta y by delta x. Okay. Delta y by delta x is 0 नहीं है यहाँ पे. Delta y by delta x. Now, if I bring b near to a, so delta x we are making near to 0. So there is a limit to do that. There is a limit to do that. Delta x is tending to 0. Delta y by delta x. Okay, that limit is called as slope of tangent, which is equal to dy by dx. Now why it is called as a slope of tangent? If b, assume करो a की तरफ आ रहा है, then what does this straight line becomes? ये जो segment है, अगर b a की तरफ आ गया या फिर b a को coincide हो गया, what does that straight line becomes now? Check. ये a भी ऐसा था ना last time.
Now that B point is reaching towards A. जब ये B point और A point coincide हो जाएगा तो ये जो straight line है, ये straight line अब क्या बनने वाला है? That will become Tangent. a tangent to that curve. So that slope of that tangent is called as dy by dx. So dy by dx का एक formula है limit delta x tends to 0 delta y by delta x. This is a separate chapter. Limits बहुत easy है, formulas based है. This is a separate chapter. Derivative बहुत easy है, again formula based है और इसका एंटी डेरिवेटिव है, वो हम लोग बाद में आते हैं. पहले ये कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है? तुमको ये चैप्टर क्यों पढ़ने का, ये टॉपिक क्यों पढ़ना है? बिकॉज whenever you are using physics, जब तुम फिजिक्स कर रहे हो ना, there will be many places जहां पे तुमको ये टर्म डेरिवेटिव यूज करना पड़ता है. पर अगर डेरिवेटिव के लिए रुकेंगे, नाउ डेरिवेटिव इज द लास्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स. अगर डेरिवेटिव के लिए रुकेंगे तो तुम लोगों को फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे नहीं. तो वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करने के लिए सिर्फ डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन दे दिया, ताकि जब डेरिवेटिव फिजिक्स में आएगा ना, यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड. नाउ वेयर इन फिजिक्स विल आई यूज डेरिवेटिव? अब ये सब तो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन था, ये सब मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन था. अब फिजिक्स में इसका यूज कैसे करने का? अभी हम लोग इसके फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, बट बिफोर दैट इसका फिजिक्स में यूज क्या? Assume I need to find the quantities of air in this room. मेरे को ये रूम के एयर का फिजिकल क्वांटिटीज को समझना है. लाइक आई वांट टू नोट डाउन द प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ठीक है? ये सारे क्वांटिटीज को मुझे अंडरस्टैंड करना है. सो व्हाट विल आई डू? मैंने पूरे रूम का एयर, पूरे रूम के एयर को कंसीडर कर दिया. So it will be very difficult to measure. So rather than considering the whole room certain quantities, I will take a small quantity which represents the whole room. That is called as derivative. मैंने उसको डेरिवेट किया, छोटा कर दिया. मैंने उसको छोटा कर दिया. मैंने उस छोटे से क्वांटिटी का सारा वेरिएबल समझा. प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब कुछ वो छोटा सा क्वांटिटी का, क्वांटिटी ऑफ एयर, थोड़ा सा एयर लिया, उस एयर का प्रेशर, टेम्परेचर एंड ऑल दीज वेरिएबल्स आई ट्राई टू फाइंड इट. जब मेरे को एक छोटे से क्वांटिटी का मिल गया, देन आई कैन अप्लाई इट फॉर द होल रूम. बिकॉज मेरा वो जो छोटा क्वांटिटी है, दैट इज द पार्ट ऑफ दैट रूम. तो मैंने उसको डेरिवेट किया. डेरिवेट यानी कट इनटू स्मॉल पार्ट्स. कट इनटू स्मॉल पार्ट्स. पूरा फंक्शन नहीं समझने का जरूरत है. पूरा फंक्शन क्यों स्टडी कर रहा है? जस्ट कट दिस इनटू स्मॉल पार्ट, अंडरस्टैंड, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इट. जो इसका आंसर आएगा, दैट कैन बी अप्लाइड टू द होल कर्व. ठीक है? सो दैट इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव. ये जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जस्ट एंजॉय दीज थिंग्स. ओके, देयर इज अ फन विद ऑल दिस पार्ट. मतलब तुमको कभी कोई पूछेगा, सबको लिमिट्स आता है, डेरिवेटिव आता है, इंटीग्रेशन आता है. इवन यू हैव योर फ्रेंड्स इन 12th स्टैंडर्ड, उनको पूछो लिमिट क्या होता है, मतलब बता, वो तुमको घुमाना स्टार्ट कर देगा. ठीक है? उसका मीनिंग नहीं पता रहता है. डेरिवेटिव क्या होता है, फॉर्मूला सबको मालूम रहता है. इंटीग्रेशन फॉर्मूला सबको पता रहता है, पर उसका मीनिंग नहीं पता रहता है. तो वो मीनिंग अंडरस्टैंड करने का कोशिश करो. दिस स्लोप ऑफ अ टेंजेंट is called limit delta y by delta x is also called as a derivative. So we are learning derivative. Now derivative का कुछ formulas है, ठीक है? Like हम लोग बेसिक फॉर्मूला स्टडी करने वाले डेरिवेटिव्स का. ओके, अगर डेल्टा x का इंक्रीमेंट 0 है तो डेल्टा y का इंक्रीमेंट 0, बट वो 0/0 रेशियो नहीं बनेगा. That ratio will still have a certain value. That ratio still has a certain value. That delta x upon delta y का ratio always has a certain value. Okay, because that is not exactly becoming 0, that is coming near to 0. ठीक है? वो decimals में रहेगा 0.001 और delta y will become 0.001. ठीक है? Ratio निकालो, that ratio will still have a certain value because 0/0 doesn't become anything. जैसे 1/0 is called as infinity, 0/1 is called as 0. समझा? बट 0/0 कुछ नहीं बनता है. तो इसलिए देयर इज अ लिमिट टू दैट. देयर इज अ लिमिट, और वो रेशियो का एक सर्टेन वैल्यू है. दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज स्लोप ऑफ टेंजेंट, इज कॉल्ड dy by dx. ओके, डिफरेंशिएशन. फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव,
डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज 0, जिसका देखो डेरिवेटिव का वेरिएबल ये क्या सिग्निफाई करता है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव डी बाई डी मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमारा वेरिएबल एक्स है पर इधर एक्स है ही नहीं, इधर एक्स है ही नहीं, तो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज 0। डेरिवेटिव ऑफ k इंटू एफ एक्स, अगर कांस्टेंट टर्म किसी फंक्शन ऑफ x से मल्टीप्लाई है और उसका डेरिवेटिव करना है तो ये k बाहर आ जाएगा, ये k बाहर आ जाएगा। तो k डेरिवेटिव किसका होगा, fx का, तो इट विल बी d बाई dx ऑफ fx। तो k कांस्टेंट बाहर आ गया, कांस्टेंट अकेला था तो 0 था, बट इफ दैट कांस्टेंट इज विद सम अदर वेरिएबल ऑफ x तो वो 0 नहीं होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका होगा, सिर्फ फंक्शन ऑफ x का। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है यार, एक बार तुम समझ लोगे ना, एक दो सम में समझ जाओगे अप्लाई कैसे करने का। दिस आर वन ऑफ द इजीएस्ट फॉर्मूलास टू अंडरस्टैंड। कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया, डेरिवेटिव किसका होगा, fx का, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ fx कैन आल्सो बी रिटन एज f डैश x, ये लिखने के तरीके हैं, तुम इसको ऐसा लिखो, तुम इसको ऐसा लिखना d बाई डी एक्स ऑफ fx, d बाई डी एक्स ऑफ fx, ये लिखने का तरीका है, या फिर इसको f डैश x लिखो, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, टेल मी व्हाट हैपेंड हियर, बाहर आ गया, कांस्टेंट बाहर आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ fx कैन बी रिटन एज k, तो बाहर ही है, f dash dash that dash signifies derivative. Third, if there are two functions which are in addition or subtraction, now these are the two functions of x, either they can be in addition or subtraction, so derivative will be separated as addition or subtraction, मतलब इन शॉर्ट डेरिवेटिव इसको भी अप्लाई होगा, डेरिवेटिव इसको भी अप्लाई होगा, दोनों को डेरिवेटिव अप्लाई होगा, प्लस माइनस जैसे है वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ u into v, now we are learning product rule, यहाँ पे u signifies function of x, v signifies another function of x, u is one function of x, v is another function in x, and there are both these functions multiplied, so what is the derivative of uv, the derivative of uv becomes u derivative of v plus v derivative of u, मतलब एक टर्म ऐसे ही रहेगा, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा टर्म ऐसे ही रहेगा, पहले का डेरिवेटिव, so that becomes u derivative of v plus v derivative of u, okay। last one, derivative of u by v, so we have learned कि अगर सिर्फ कांस्टेंट रहा तो 0, कांस्टेंट विद अ फंक्शन रहा तो कांस्टेंट विल कम आउट, एडिशन सब्ट्रैक्शन रहा तो डेरिवेटिव विल गो टू बोथ द टर्म्स। ओनली फॉर्मूला जहां पे कॉन्सेंट्रेट करना है, जहां पे तुमको याद रखना है, दैट इज uv एंड u by v, और u by v सबसे पहले v स्क्वायर होगा, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर होगा, v स्क्वायर, दैट विल स्टार्ट विद v डेरिवेटिव ऑफ u minus u derivative of v. Now, how will I remember it? You are going to give more importance to v. Denominator को ज्यादा वैल्यू करोगे. We'll start with v. सबसे पहले v square. सबसे पहले v. V will come here, v square, and we will come here, v. V derivative of u minus u derivative of v. All these out of all this formula, ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूला, ये तो तुम सबको पता समझ में आ गया रहेगा कि अगर कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल मैं अगर डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ t कर रहा हूं, मैंने डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा है, मतलब मेरा वेरिएबल x होना चाहिए, पर मेरे अंदर इधर x है ही नहीं, यहाँ पे t है, तो यहाँ पे सीधा आंसर क्या लिखना है, 0, ठीक है। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा लिखा है, जबकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, पर यहाँ पे साइन थीटा लिखा है,
ठीक है, यहाँ पे साइन एक्स होता तो चलता था, तो डेरिवेटिव होता है, पर थीटा लिखा है तो डेरिवेटिव होगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे एक्स है ही नहीं, तो आंसर विल बी डायरेक्टली 0। डेरिवेटिव अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है, समझो डेरिवेटिव ऑफ 3x है, 3 कांस्टेंट है, तो मेरा 3 बाहर आ जाएगा, यानी डेरिवेटिव सिर्फ किसका होगा, डेरिवेटिव ऑफ x होएगा। ठीक है, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो डेरिवेटिव दोनों को जाएगा, सिंपल रूल है ये। ठीक है, तो ये 3 रूल कभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते, ये दोनों में तुमको प्रैक्टिस चाहिए, बिकॉज दिस इज न्यू फॉर यू। सो व्हेन यू आर डूइंग uv, पहले स्टार्ट u से होता है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। गलती से उल्टा लिखा तो भी चलेगा, वैसे भी प्लस साइन है बीच में, फर्क भी पड़ता है, इधर फर्क पड़ता है क्योंकि इधर माइनस साइन है, इधर उल्टा लिखेंगे तो नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। अगर u by v है तो v give more importance to v, पहले we start with v square, v derivative of u minus u derivative of v. So this is all the explanation about the derivative formulas. Now we will learn derivative of certain basic functions. Now we are learning derivative of certain basic functions. Like ये functions कैसे represent करते हैं? y is a function of x. ठीक है, ये लिखने के तरीके, y is a function of x. तो ये लिखने का तरीका है, y is a function of x. अगर मैं इसका डेरिवेटिव लिखूंगा तो it will be written as d by dx of y and function of x का डेरिवेटिव will become f dash x. ये सिर्फ लिखने के तरीके, डेरिवेटिव लिखे कैसे जाते हैं। अगर y लिखा है तो dy by dx और fx लिखा है तो f dash x। ठीक है, now we'll start. First, once again, constant का डेरिवेटिव 0. Okay. Second, x raised to n का डेरिवेटिव is n x raised to n minus 1. x raised to n का डेरिवेटिव is n x raised to n minus 1. डोंट वरी, ये बहुत कुछ 6-7 फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूलाज लर्न करना है, जो इधर अप्लाई करना है, अपने को इधर करना है। ठीक है, पर फॉर्मूला इधर है। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ x raised to n is n x raised to n minus 1. कैसे याद रखोगे, ये n आ गया और ऊपर n minus 1, लेट्स अप्लाई इट। टेल मी x क्यूब का डेरिवेटिव बताओ। 3 into x 3 minus 1. 3 minus 1. चलेगा? Yes. ओके, रूट x का डेरिवेटिव बताओ। सेम रूल, डोंट गेट कंफ्यूज। सर ये सिखाया नहीं, x रेज टू हाफ होता है, रूट मतलब x रेज टू हाफ होता है, 1/2. ये रूट x है। बोलो ट्राई करो। 1/2x. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2 x रेज टू हाफ माइनस 1। Minus 1. ठीक है, डेरिवेटिव का आंसर 1/2 x रेज टू हाफ माइनस 1 बिकम्स माइनस हाफ, ग्रेटर का साइन माइनस हाफ, माइनस का कारण हाफ, x रेज टू नीचे आएगा, x रेज टू हाफ, और x रेज टू हाफ का मतलब होता है रूट x, यानी रूट x का डेरिवेटिव क्या बन गया, 1/, समझा? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट x? 1/2 रूट x। वो कैसे बना, समझा? ओके, अब मेरे को बताओ 1/x का डेरिवेटिव। चलो सेम रूल अप्लाई करो। वन अपॉन एक्स है ना, यानी x रेज टू माइनस 1, x रेज टू माइनस 1। टेल मी डेरिवेटिव बताओ इसका। x रेज टू माइनस 1 का डेरिवेटिव, अप्लाई दिस फॉर्मूला, दिस इज योर फॉर्मूला। फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला का हर जगह पे अप्लाई करो। Minus 1 -1. -1 x रेज टू माइनस 1 minus माइनस 2. 1, यानी -1 x रेज टू n माइनस 1 है ना, -1 माइनस 1 यानी -2, यानी -1 अपॉन x स्क्वायर। सो आंसर इज -1 अपॉन x स्क्वायर। नेक्स्ट, x का डेरिवेटिव, सिर्फ x का डेरिवेटिव। -1 minus 1 minus 1 0 होता है, सिर्फ x का डेरिवेटिव, यानी x रेज टू 1 है। x का डेरिवेटिव है ना x रेज टू 1, तो 1 तो आगे आया, x रेज टू 1 माइनस 1 1,
x raised to 0, x raised to 0 यानी 1. So what is the derivative of x? 1. So if you notice it, मैंने x raised to n का फॉर्मूला में बहुत सारे टर्म्स ढूंढ लिए. ठीक है, अब वैसे ही अपने को आगे और 2-3 फॉर्मूलाज है दैट वी नीड टू स्टडी. डोंट से ये बहुत सारे फॉर्मूला ये है, ये उसके एप्लीकेशन मैंने बता दिया, वो यूज कैसे करता है. तो x रेज टू 3 रहा तो x रेज टू 2 रहा तो क्या करोगे, रूट x रहा तो क्या करोगे, 1/x रहा तो क्या करोगे, x रहा तो क्या करोगे. ठीक है, तो इवन दीज टर्म्स इट्स बेटर इफ यू लर्न इटसेल्फ. ओके, नेक्स्ट. log x का डेरिवेटिव इज 1/x. e raised to x का डेरिवेटिव इज e raised to x. a raised to x का डेरिवेटिव इज a raised to x log a. लास्ट, साइन का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस साइन. sec x का डेरिवेटिव sec x tan x एंड cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x. tan x का डेरिवेटिव इज sec square x, cot x का डेरिवेटिव इज माइनस cosec square x. वैसे तुमको अभी करंटली ये पूरी फॉर्मूला याद नहीं रखने हैं, तुमको ये दो तो याद रखने ही नहीं है, इसे मैंने बता दिया. ये सारे फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, ये डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूलाज लिखे. तुमको सिर्फ ये एक्स रेज टू वाला फॉर्मूला याद रखना है, जो अपन एक्स रेज टू वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, वो याद रखना है. और ये वाला कुछ फॉर्मूलाज या ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूलाज याद रखना है. ठीक है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन. तो याद दोनों थोड़ी रखोगे, बेवकूफ हो गए दोनों याद रखने के लिए. याद एक ही रखो ना, साइन का कॉस होता है तो कॉस का माइनस साइन होता है. समझ में आ गया? तो ये दो मिला के एक यूनिट बनाओ, तो ये एक फॉर्मूला हो गया. साइन को याद रखो, कॉस ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. सेक को याद रखो, व्हाट इज सेक, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स इनटू tan x. तो कोसेक एक्स का क्या आएगा, माइनस साइन माइनस कोसेक इनटू कॉट. तो तुमको सेक याद होगा तो कोसेक ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. सेम वे tan याद रखोगे तो कॉट याद होएगा. tan x का डेरिवेटिव sec square x, तो cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec square x. ठीक है, सो फॉर्मूलाज आर नॉट डिफिकल्ट, डोंट वरी, ये बहुत इजी फॉर्मूलाज है. समझो अगर अपन ने ये कॉन्सेप्ट किया नहीं होता ना, तो भी फिजिक्स में इसको डायरेक्टली यूज करना पड़ता. और हर बार मैं क्या बोलता पता है, ये तुमको 12th में आने वाला है, तब समझोगे, अभी लर्न करो. ठीक है, सो व्हाट दे हैव डन इज, इंस्टेड ऑफ टीचर सेइंग इट कि ये तुमको 12th में आएगा तभी लर्न करना, अभी सिर्फ लर्न करके रख दो. So instead of that, they have explained you the formula so that whenever it comes, you should be able to understand it. तुमको क्लिक होना चाहिए, अच्छा सर डेरिवेटिव ना साइन का मालूम है मेरे को, cos x आता है, तो डेरिवेटिव ऑफ x raised to 3 ना मेरे को पता है 3x square आता है, तो तुमको पहले से पता होगा. That is the reason this concept has been explained. ये in detail होने वाला है. This derivative integration that we are learning in short over here is your complete 30 marks mathematics in 12th standard. 30 मार्क का मैथ्स है वो, 30 मार्क्स का. तो तुम इतना मत एक्सपेक्ट करो कि सर एक लेक्चर में आप मेरे को पूरा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सिखा दिया, पूरा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मेरा हो गया. नहीं, वो तुम समझ सकते हो 12th स्टैंडर्ड में 30 मार्क्स का है. तुमको क्यों स्टडी करना है, तुमको सिर्फ बेसिक रूल समझना है. ये बेसिक रूल समझ में आ गया, सो व्हेन यू आर अप्लाइंग इट इन फिजिक्स डेरिवेशन, दैट टाइम यू डोंट गेट स्टक अप समवेयर. ठीक है, तुमको ऐसा नहीं होगा सर रट्टा मरवा रहे. ठीक है, सब वो जैसे आईआईटी क्लासेस वाले कराते रहते हैं, लर्न करो ये, लर्न करो ये, लर्न करो ये, लर्न करो, अप्लाई करते जाओ. ठीक है, वैसा वाला नहीं करना है, तुमको हर एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है. सो योर बोर्ड गोज बाय द एक्सप्लेनेशन पार्ट. ठीक है, x raised to 2. 3x square, डेरिवेटिव ऑफ x, 1. डेरिवेटिव ऑफ t square with respect to x, डेरिवेटिव ऑफ t square with respect to x, derivative of t square with respect to x. 0. Very good. 0. ये देखो जो जोश में आ गए ना, इसका भी डेरिवेटिव करने लग गए. ये कांस्टेंट हो गया ना, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पूछा है मैंने. ठीक है, इसलिए मैंने क्लैरिफाई किया विद रिस्पेक्ट टू x. डेरिवेटिव ऑफ cos x, cos x का डेरिवेटिव
minus minus sin x minus sin x Derivative of cosec x. minus minus cosec cosec minus into cosec cot x into tan Minus cosec into into tan cot x. x. Derivative of tan x. minus X sec square square x. Derivative of x cot x x. square Minus cosec minus square x. cosec minus square cosec x square x. minus Okay, cosec so square x. now I think question is to obtain the derivative of this function. Now this function I can name it as y or I can name it as fx. वो choice तुम्हारा है, तुमको क्या नेम करना है, तुमको y नेम करना है या तुमको fx नेम करना है, दोनों में से कोई भी नाम दोगे चलेगा, वो तुम्हारा सी. अगर फॉर एग्जांपल तुमने fx नेम किया तो fx का डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे f डैश x, पर अगर तुमने y नेम किया तो y का डेरिवेटिव लिखेंगे dy by dx. सिर्फ ये लिखने का तरीका है, दिस इज द मेथड टू राइट. ठीक है, हर एक चीज का एक मेथड होता है ना लिखने का, तो ये लिखने का सिर्फ तरीका है, वो याद रखना है. तो वो तुमने चूज किया है y. नाउ आई एम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव. डिफरेंशिएशन वर्ड का मतलब ही डेरिवेटिव होता है, सो डोंट बी कंफ्यूज. सो डिफरेंशिएशन चैप्टर सिखाया नहीं, डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव होता है. डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, that is called as d by dx of y. अगर तुमको याद है हमने डेरिवेटिव के फॉर्मूला में अगर एडिशन या सबट्रैक्शन होता है तो क्या रूल स्टडी किया था. व्हाट वाज द रूल फॉर एडिशन सबट्रैक्शन. डेरिवेटिव दोनों को जाता है, इसको भी डेरिवेटिव जाएगा, इसको भी डेरिवेटिव जाएगा, यानी क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ x raised to 4 Plus derivative of cos x. चलो अभी डेरिवेटिव करते हैं dy by dx. यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, डेरिवेटिव ऑफ 4 x raised to n वाला. N. What is the formula for derivative of x raised to n? 4x 4x cube. 4x cube Yes. n 4x cube x raised to n minus 1 यानी 4 x raised to 4 minus 1 यानी 3 3. plus. So x raised to 4 का derivative is 4x cube. What is the derivative of cos x? Minus sin x. Sin का derivative is cos, but cos का derivative क्या रहेगा? Minus sin x. So final answer 4x cube. Minus sin x. अभी इजी लग रहा है, ठीक है. Yes, फॉर्मूला sir. याद हो गए ना, तो ये करना सॉल्व करना इजी है, जस्ट बेसिक रूल्स अप्लाई करना है. लेट्स टेक वन मोर सम. करना वही है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ. Okay. Now this is, let's take it as y. So what is dy by dx? एडिशन के टाइम पे मैंने क्या बोला था, डेरिवेटिव गोज टू बोथ द टर्म्स. दिस इज सबट्रैक्शन. वंस अगेन डेरिवेटिव इन, यस प्लीज, डेरिवेटिव इन. एडिशन के टाइम पे क्या बोला था, डेरिवेटिव दोनों को जाता है ना, सबट्रैक्शन में क्या होने वाला है, दोनों को so d by dx of e raised to 2x minus d by dx of d tan x upon dx. ठीक है, नहीं ऐसा नहीं बोलते, tan x upon dx नहीं बोलते यार, बोलने का तरीका राइट रखो आप. d by dx of e raised to 2x, d by dx of tan x. इसको इस तरह से रीड कर. This d by dx is called derivative. ये डेरिवेटिव होता है, किसका डेरिवेटिव, tan x का. ठीक है, ये बोलने के तरीके लर्न करना. So derivative of e raised to 2x, derivative of tan x. Okay, we have already learned e raised to x का डेरिवेटिव किया था. What was the derivative of e raised to x? E raised to x. और यहाँ पे एक E छोटा सा raised to चेंज है, 2. e raised to 2x है, तो e raised to 2x का डेरिवेटिव e raised to 2x ही रहेगा. बट जो चेंज है ना, जो जिधर छोटा सा चेंज आया ना, वो चेंज का फिर से डेरिवेटिव होगा. दिस इज कॉल्ड चेन रूल. दिस इज कॉल्ड चेन रूल. ये तुमको 12th में अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, पर अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ. e raised to 2x का डेरिवेटिव e raised to 2x रहेगा, because that is your formula. e raised to x का डेरिवेटिव is e raised to x only. So e raised to 2x का डेरिवेटिव is e raised to 2x.
but because that is not x, that is 2x, so there will be a derivative of that 2x also. That is called chain. मतलब ये chain में आगे बढ़ गया, वैसे ही chain में ये और आगे जा सकता है, ठीक है? तो इसको chain rule बोलते हैं. जब 12th में आएगा और क्लैरिटी आएगा, अपने को उतना जरूरत नहीं अभी समझने का, ठीक है? ओके, ये समझ में आ गया पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What is the derivative of tan x? Sec square x. ओके, अब 2x का डेरिवेटिव बाकी है. अगर तुमको याद है कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ये कांस्टेंट x के साथ है. देखो अगर ये डेरिवेटिव सिर्फ कांस्टेंट होता तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वुड हैव बिकम 0, बट दिस इज नॉट अ डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, दिस इज 2x. तो ये 2 का क्या होएगा? 2 बाहर आएगा. R डेरिवेटिव किसका होगा? सिर्फ x का. x व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x? 1. 1. यानी ये सिर्फ 2 बाहर आ गया, यानी 2 आया. x का डेरिवेटिव इज 1 e raised to 2x. 2 बाहर आया, x का डेरिवेटिव इज 1 e raised to 2x minus sec square x. This is dy by dx. What is an increase in this difficulty level? This is x sin x. ठीक है? This x sin x, let us take it as y. Y is equal to x sin x. Now I want to do derivative. मैंने लास्ट टाइम ही कहा जब एडिशन होता है डेरिवेटिव दोनों को जाएगा, सबट्रैक्शन होता है डेरिवेटिव दोनों को जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है. नाउ व्हाट विल आई डू? दिस इज मल्टीप्लिकेशन बिकॉज दिस इज x into sin x. x into sin x. Now tell me, multiplication का रूल क्या बताया था? If there is a multiplication, how will I write the derivative here? U You remember? derivative of v. Yeah, u into v rule. U into v rule. This is one function of x and this is another function of x. This is u multiplied by v. So what is derivative of uv? X derivative of sin x. U derivative of v plus v derivative of u. Remember the formula for uv? सिर्फ uv और u by v में ना थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ जाता है. क्यों थोड़ा स्ट्रेस बढ़ जाता है? बिकॉज वो फॉर्मूला में एक और चेंज आ जाता है. दैट यू नीड टू रिमेंबर. सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ uv? दैट इज u Derivative of Derivative of sin v x plus plus v sin x derivative. डेरिवेटिव ऑफ u. derivative of u. Of sin x. मल्टीप्लाई में प्लस साइन आता है, माइनस नहीं आता है. u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. समझो तुम भूल गए कि सर ये पहले आएगा कि ये पहले आएगा, उससे फर्क ही नहीं पड़ता है बिकॉज प्लस साइन है. उल्टा रखोगे तो भी आंसर वही आने वाला है. माइनस होता ना तो फर्क पड़ता है, ठीक है? सो हियर u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. नाउ लेट अस टेक द डेरिवेटिव. इसका डेरिवेटिव हो ही नहीं रहा है क्योंकि इधर डेरिवेटिव लिखा ही नहीं है, तो ये x ऐसे ही रहेगा. इसका डेरिवेटिव नहीं हो रहा है. We are taking derivative of sin x. What is the derivative of sin x? Cos x. Cos Cos Notice x. करो, मैंने डेरिवेटिव इधर किया है. अच्छा, जब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं डेरिवेटिव साइन नहीं लिख रहा हूं. नहीं तो स्टूडेंट क्या करते हैं? डेरिवेटिव ऑफ sin x इज डेरिवेटिव ऑफ cos x. फिर से डेरिवेटिव लिखते हैं तो ये वापस डेरिवेटिव करता है, वो वापस sin x पे पहुंच जाएगा. ठीक है? Once again, derivative of sin x is cos x. So when I take a derivative, वापस डेरिवेटिव खत्म हो गया. अब इसका आगे कुछ नहीं करना. This is sin x. Now tell me, what is the derivative of x? X का One. derivative. 1. One. 1. So what's my answer? dy by dx क्या हो गया? x X in cos into x cos plus plus sin x. Sin x. easy है. I think ये वाला मुझे तुम easily बता सकते हो. x cube sin x. Okay. एक काम करते हैं ना तुम लोग, किसी को रॉन्ग आया है क्या? ये सिंपली अप्लाइड u डेरिवेटिव ऑफ v, v डेरिवेटिव ऑफ u, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर आगे रहेगा. इसके बाद भी एक स्टेप और कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं जरूरत रहा तो, ठीक है? वरना ऐसे भी छोड़ दोगे चलेगा. समझ में आ गया डेरिवेटिव? नाउ इफ यू लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ लिखने का पैटर्न चेंज हो गया. उन्होंने y वगैरह लिखा नहीं है, डायरेक्टली डेरिवेटिव लिखा है. तो डायरेक्टली डेरिवेटिव स्टार्ट करो. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x? व्हाट डज दिस मींस? Log. log यहाँ पे बेस e है, और याद रखना हमने जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला लर्न करा है ना वो बेस e वाला ही है, बेस 10 वाला फॉर्मूला लर्न नहीं किया है. और हम लोग जो लॉग टेबल यूज करते हैं ना, डू रिमेम्बर दिस वेरी वेल, जो लॉग टेबल यूज कर रहे हैं ना उसका बेस 10 है, उसमें बेस 10 होता है. और ये जो है डेरिवेटिव के अंदर जो फॉर्मूला यूज करे दैट इज ऑलवेज विद द बेस e.
तो अगर ln लिखा है मतलब अंडरस्टूड है कि यहाँ पे बेस e है. ln लिखा है ना मतलब ये बेस e है. This is logarithmic numerical with the base e itself. Okay, so let's start with the UV rule. Please start. Any questions? Then please ask.